Hi, good morning, my dear student. Today we are going to read your class 11th history, theme 9, chapter 9, the Industrial Revolution. My dear, in this chapter we discuss the different topic. The previous topic, I mean, railway and canals, coal and iron, spinning, weaving, cotton, and introduction of this chapter. In this chapter, we also studied that how the machines changed the normal life of the British people. We also discussed that the production rate that was increased in very huge amount, bank and the government policy also in favor of the this revolution. My dear, today we are going to read the topic the inventors who invented the various machines. When you will read a topic who were inventors in my previous class, there should be no confusion in your mind that they were not belongs to the elite class or the very literate class. They belong to the common society. They were normal people. Even some they were illiterate or they little bit literate. My dear, let us come and try to understand this paragraph. This is very important because machines play very important role in the industrialization of the Britain. Not only in Britain but also the whole world. The machine play important role. पूरी दुनिया में मशीनों का जो योगदान है, जो महत्व है, वो सभी जगहों पे सर्वाधिक है और ये चीज़ें समय के अकॉर्डिंग हमें हर जगह दिखाई देती हैं. Let us come and try to understand this topic, the who were inventors. It is interesting to find out who the individuals were who brought about these change. Few of them were trained scientists, education in basic science like physics or chemistry was extremely limited until the late 19th century. Well, after the technological invention described above, since these breakthrough did not require a full knowledge of the law of physics or chemistry on which they were based. Advance could be and were made by the brilliant but the intuitive thinkers and present experiments. They were helped by the fact that England had certain features which European countries did not. Dozens of scientific journals and published papers of scientists societies appear in England between 1760 and 1800. There was widespread thirst of knowledge even in the smaller town. This was made by the activities of the Society of Arts, founded in 1754, by the traveling literature or the coffee houses that multiplied through the 18th century. My dear, having read this paragraph, we have clear information about that those people who belongs to these inventions, many of them they were educated. Most of them they were very little bit knowledge about particular things. According to their needs, according to their requirements, they did work and they found result. Who were inventors? आविष्कारक कौन थे? ये पता लगाना अवश्य ही रुचिकर होगा कि वो लोग कौन थे जिनके प्रयत्नों से ये परिवर्तन हुए. उनमें से कुछ लोग ट्रेंड एक्सपर्ट साइंटिस्ट थे
फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे बेसिक साइंस की शिक्षा 19वीं सेंचुरी के आखिरी दशकों तक अत्यंत ही सीमित मात्रा में थी। और ऊपर जो टेक्नोलॉजी, जो इन्वेंशन बताए गए वो उस समय तक हो चुके थे जब फिजिक्स और केमिस्ट्री का एजुकेशन या तो बहुत ही कम था या तो ना के बराबर था। चूंकि इन आविष्कारों को करने वाले लोग, इन आविष्कारों को संपन्न करने के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री का ज्ञान, उनके प्रिंसिपल्स, उसकी थ्योरी, उनके नियमों की पूर्ण जानकारी होना जरूरी था, जिन पर यह आविष्कार आधारित थे, जिन पर ये इन्वेंशन हुए थे। इसलिए वैज्ञानिक प्रगतियां, जो साइंटिफिक जो डेवलपमेंट था, प्रतिभाशाली लेकिन अंतःप्रज्ञ विचारकों तथा लगनशील प्रयोगकर्ताओं द्वारा की गई। उन्हें इस तरह से भी सहायता मिली कि इंग्लैंड में कुछ ऐसी विशिष्टताएं थी जो अन्य यूरोपीय देशों में नहीं थी। इंग्लैंड में 1760 से 1800 के बीच दर्जनों वैज्ञानिक पत्रिकाएं, मैगजीन्स, जर्नल्स, अनेक वैज्ञानिक संस्थाओं द्वारा आर्टिकल्स लिखे गए, रिसर्च पेपर लिखे गए, प्रकाशित किए गए, पब्लिश हुए। यहाँ तक कि वहाँ के छोटे छोटे कस्बों में भी लोगों के अंदर ज्ञान पिपासा, जानने की इच्छा सर्वत्र व्याप्त थी। लोगों को ज्ञान के प्रति उनकी ये क्यूरियोसिटी, उनकी ये प्यास को कला, समाज, सोसाइटी ऑफ आर्ट्स 1754 में जो स्थापित हुई थी के द्वारा उसका नर्चर किया गया। घूमने फिरने वाले जो व्याख्याता थे, जो घूमने फिरने वाले लोग थे, आई मीन टू से दैट द पीपुल, दिस वॉज मेड बाय द एक्टिविटीज ऑफ द सोसाइटी ऑफ आर्ट्स, बाय ट्रेवलर्स लेक्चरर्स, बाय ट्रेवलिंग लेक्चर्स आर इन कॉफी हाउसेस दैट मल्टीपल थ्रू 18th सेंचुरी। ये जो लोग घूमने फिरने वाले, जो लेक्चर देने वाले लोग थे, उन काफ़ी हाउसों में, जिनकी संख्या 18th सेंचुरी में कई गुना बढ़ गई, वहाँ ये लोग बैठ करके अपनी ज्ञान पिपासा को, अपनी जिज्ञासाओं को मिटाने का काम करते थे। और उनकी ये जिज्ञासाएं ही, उनकी ये क्यूरियोसिटी नए नए जो खोज हो रहे थे उनको प्रोत्साहित करने का काम कर रही थी। इस पूरे पैराग्राफ में हमने देखा कि ब्रिटेन में कुछ ऐसी सिचुएशंस बनी, ब्रिटेन में कुछ ऐसी सिचुएशंस थी जहां पे लोग नई नई चीज़ों को करने के लिए आतुर थे, वे कुछ नया खोजना चाहते थे। 1760 to 1800 के बीच इंग्लैंड में ऐसे तमाम सारे रिसर्च पेपर, आर्टिकल्स, साइंटिफिक जर्नल्स पब्लिश हुए। लोगों ने पढ़ा और फिर उसके आधार पे अपनी सोच को और फ्रूटफुल और एक्सपेंड किया, विस्तारित किया, और उसके आधार पे लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार उन लोगों ने नए नए खोज किए। यह आश्चर्य की बात है कि जो खोज करता थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, और ये भी आश्चर्य की बात है कि जिन मशीनों का उन्होंने खोज किया, जो भौतिकी और रसायन विज्ञान का ज्ञान उन्हें होना चाहिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री के नॉलेज के बिना वो संभव नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने उन मशीनों की खोज की, क्योंकि भौतिकी और रसायन का अध्ययन 19वीं सेंचुरी के 19th सेंचुरी के लास्ट में शुरू हुआ था। अब एक क्वेश्चन और कहता है, मोस्ट इन्वेंटर्स वर मोर द प्रोडक्ट ऑफ डिटरमाइनेशन, इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी, इवन luck than the application of scientific knowledge। कहता है कि most inventors were more the product of information, interest, curiosity, even luck than the application of scientific knowledge। अधिकतर आविष्कारक वैज्ञानिक ज्ञान के अनुप्रयोग की अपेक्षा डिटर्मिनेशन, इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी, यहाँ तक कि भाग्य के बल पर ही हुए। जो उन्होंने इन्वेंशन किया, जो उन्होंने खोज किया, वो वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर नहीं था, वो उनके अंदर दृढ़ इच्छा, लगन शक्ति
जानने की इच्छा और कुछ नया बनाने के लिए जो उनके मन में उत्साह था उसके बल पे हुई। कपास उद्योग, कॉटन इंडस्ट्री के क्षेत्र में कुछ आविष्कारक जैसे जॉन के, जेम्स हरग्रीव्ज ने जो काम किया, माय डियर, what I'm saying, when you will read this line, you can easily understand that most of inventors were more the product of determination, interest, curiosity, even luck, than the application of scientific knowledge. Some inventors in the cotton industry, like John Kay and James Hargreaves, were familiar with the skill of weaving and carpentry. Richard Arkwright, however, was a barber and wig maker. Samuel Crompton was not a technically skilled, and Edmund Cartwright studied literature, medicine, and agriculture. Initially wished to become a clergyman and knew little of machine. This paragraph gives us the very clear information about those people who were inventors. Mainly they was not belong to scientist family. Many of them they belong to common family. अधिकतर आविष्कार वैज्ञानिक ज्ञान के प्रयोग की अपेक्षा उनकी दृढ़ता, उनकी क्यूरियोसिटी, उनकी जिज्ञासा और भाग्य पर आधारित था। जैसा कि मैंने कहा, कॉटन इंडस्ट्री में जो खोज हुए थे, कुछ इन्वेंटर्स के नाम जैसे मैंने कल आपको बताए थे, जॉन के, जेम्स हरग्रीव्ज, जिन्होंने बुनाई और जो वो लोग क्या थे, वो वीविंग और कारपेंट्री से परिचित थे। किंतु रिचर्ड आर्कराइट एक बार्बर थे, नाई थे, बालों का बिग बनाने वाला काम करते थे। सैमुअल क्रॉम्पटन तकनीकी दृष्टि से कुशल नहीं थे और एडमंड आर्कराइट ने साहित्य, आयुर्विज्ञान और कृषि का अध्ययन किया। प्रारंभ में इनकी इच्छा पादरी बनने की थी, क्लर्जीमैन बनने की थी, और वह यांत्रिकी के बारे में बहुत कम जानते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने, आर्कराइट ने कितना अच्छा इन्वेंशन किया, कितनी खोज की। बाय कंट्रास्ट, इन द एरिया ऑफ स्टीम इंजन, थॉमस सेवरी an army officer, Thomas Newcomen, a blacksmith and locksmith, and James Watt, with a strong mechanical bent, all had some knowledge relevant to their invention. The road builder, John Metcalfe, who personally surveyed surface for road and planned them, was blind. The canal builder James Brindley was almost illiterate, with such poor spelling that he could never spell the word navigation, but he had tremendous power of memory, imagination and concentration. कहता है, इससे आगे अगर आप बढ़ के देखें, इसके विपरीत देखें तो भाप के इंजन के क्षेत्र में, स्टीम इंजन के क्षेत्र में थॉमस सेवरी, जिन्होंने पफिंग डेविल के नाम से एक मशीन बनाई थी, वो एक आर्मी अफसर थे। थॉमस न्यूकॉमेन एक आयरन स्मिथ थे, लॉक स्मिथ थे, लोहार थे, ताला बनाते थे। जेम्स वाट यद्यपि कुछ नॉलेज उनको टेक्निकली था, यंत्र से संबंधित था, उनके पास कुछ नॉलेज, मैकेनिकल बेंट थे वो थोड़ा बहुत। या ऐसे कहें कि जेम्स वाट का कुछ जो आकर्षण था, जेम्स वाट जो सोचते थे, टेक्निकली सोच रखते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि उनके पास टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़्यादा था। उन्होंने किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी इसके लिए स्पेशली। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब थॉमस न्यूकॉमेन एक लोहार और तालासाज थे, जेम्स वाट यंत्र संबंधी कामकाज की ओर उनका बहुत झुकाव था,
उन सब में अपने अपने आविष्कार के प्रति कुछ संगत ज्ञान अवश्य था। आश्चर्य की बात है, रोड बिल्डर्स, जो सड़क निर्माता जॉन मेटकाफ का अगर हम उदाहरण लें तो हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जॉन मेटकाफ, जिसने स्वयं व्यक्तिगत रूप से सड़कों की सतहों का सर्वेक्षण किया था और उसके बारे में योजना बनाई थी, कंप्लीटली ब्लाइंड थे, अंधे थे। नहर निर्माता जेम्स ब्रेंडले तो लगभग इलिटरेट थे, निरक्षर थे। कहता है जेम्स ब्रेडली वॉज ऑलमोस्ट इलिटरेट विथ सच पुअर स्पेलिंग। शब्दों की वर्तनी के बारे में उनका ज्ञान इतना कमजोर था कि वह नौचालन नेविगेशन शब्द का सही वर्तनी कभी न बता सका। लेकिन उसमें गजब की स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति और एकाग्रता थी। उसी के दम पे उसने इंग्लैंड में पहली नहर का निर्माण किया, जेम्स ब्रेडले ने। तो ये जितने भी खोज हुए, ये जितने भी कार्य हुए, इन सब में इनको करने वाले लोग कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं थे, दे वर कॉमन पीपल। बट देयर डिटर्मिनेशन, देयर क्यूरियोसिटी, देयर इंटरेस्ट, that was very much than others. That's why they succeed in their aim. When you will read the name of John Metcalfe, who was road builder, he was blind. Even he was blind, he surveyed the road and planned the road and made a very excellent road in Britain. He was road builder. Their name was remembered as a very good road builder in the British history. He was blind. अंधा था वो. I hope you are getting understand what I am saying. मैंने आपको जो बताया उसके बारे में आपने पढ़ा होगा। अब आइए देखते हैं चेंज लाइफ्स के बारे में। टॉपिक चेंज लाइफ। In this topic, we are going to read about the lives of the people who live in urban area and their main occupation related from this industrialization. Change life in this year. Therefore, it was possible for individuals with talent to bring about revolutionary change. Similarly, they were rich individuals who took risk and invested money in industry in the hope that profits could be made and that their money would multiply. In most cases, this money capital did not multiply. Wealth in the form of good income, service, knowledge, and productive efficiency did increase dramatically. There was at the same time a massive negative human cost. This was evident in broken families, new addresses, degraded cities, and applying working conditions in factories. The number of cities in England with a population of over 50,000 grew from 1750 to 29 in 1850. This pace of growth was not matched with the provision of adequate housing, sanitation, or clean water for the rapidly growth underpopulation. My dear, कहता है कि चेंजिंग लाइफ्स के बारे में कहता है इन दिस ईयर, इन वर्षों के दौरान प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन लाना संभव हो पाया। इसी प्रकार ऐसे धनवान लोग भी बहुत थे जिन्होंने जोखिम उठाकर
उद्योग धंधों में आशा से पूंजी निवेश किया। इससे उन्हें मुनाफा हुआ, उनके धन में कई गुना वृद्धि हुई, अधिक प्रॉस्परस हुई। अधिकांश मामलों में यह धनराशि, उनकी पूंजी, उनकी कैपिटल्स कई गुना बढ़ी। धन में, उनकी आय में, इनकम में, उनकी सर्विसेज में, उनके नॉलेज में, उनकी प्रोडक्टिविटी में जो कुशलता में अचानक वृद्धि हुई, वो इसी का परिणाम थी। कहता है मल्टीप्लाई, दे टुक रिस्क and invested money in the industries in the hope that profit could be made and that their money would multiply. In most cases, this money capital did multiply. Wealth in the form of the goods, income, service, knowledge, and productivity efficiency did increase dramatically. धन में, माल में, उनकी आय में, उनकी सेवाओं में, ज्ञान में, उनकी उत्पादक कुशलता के रूप में अचानक वृद्धि हुई, लेकिन इसका मनुष्यों के ऊपर दूसरे रूप से भारी प्रभाव पड़ा। दूसरे लोग उसका खामियाजा उठाए। इसका रिजल्ट क्या हुआ? शहरों में रहने वाले लोगों के परिवार टूट गए, उनके अपने एड्रेस बदल गए, लोगों को नई जगहों पर रहना पड़ा, शहर विकृत होने लगा, फैक्ट्री में काम करने की परिस्थितियां एकदम बिगड़ गई। इंग्लैंड में 50,000 से अधिक की आबादी वाले नगरों की संख्या 70-50 में केवल 2 थी, जो बढ़ते हुए 80-50 में 29 हो गई। माय डियर 70-50 में केवल 2 थी, जो बढ़ते हुए 80-50 में 29 हो गई। 50,000 की आबादी वाले नगरों की संख्या, सिटी बढ़ने लगी। आबादी में, पॉपुलेशन में जिस रफ्तार से बढ़ोतरी हुई, उस रफ्तार से रहन सहन के अन्य साधनों में वृद्धि नहीं हो पाई। जनसंख्या तो बढ़ रही थी, लेकिन फैसिलिटीज उस रूप में उनके लिए उतनी मात्रा में नहीं बढ़ पा रही थी। वहां रहने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। सफाई और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था में भी बढ़ती हुई शहरी आबादी के मुताबिक सुधार नहीं हुआ। बाहर से आकर नए बसे लोगों को नगरों में कारखानों के आसपास भीड़ भाड़ वाली गंदी बस्तियों में रहना पड़ता था, जबकि धनवान लोग नगर छोड़कर आसपास के उपनगरों में साफ सुथरे मकान बनाकर रहने लगे, जहां की हवा स्वच्छ थी और पीने का पानी भी साफ और सुरक्षित था। Newcomers were forced to live in overcrowded slums in the congested central area of town near factories, while the rich inhabitants escaped. भाग गए वो लोग। जहां गरीब लोग शहरों में आके रहने लगे, गंदी बस्तियों में रहने लगे, वहां धनी लोग गंदी, ये शहरों की गंदी पॉल्यूशन को छोड़ करके उपनगरों में चले गए। By shifted to homes in the suburbs where the air was cleaner and the water safe to drink. जहाँ पानी साफ था, रहने के लिए स्वच्छ हवा थी, शांत वातावरण था। इस तरह लोगों के जीवन बदलने लगे। तो माय डियर, आप इस टॉपिक से कई सारे पॉइंट समझ गए होंगे कि लोगों का जीवन कैसे बदल रहा था। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।